Hello, welcome to the platform of Chronicle IS. My name is Prakash Upadhyay. I am the Faculty of Geography, Environment and Ecology and Disaster Management. Also dealing the section of UPPCS Geography, Environment and Ecology. So we are come to the topic. This is the test number 12, paper number 6, UP, where I am going to deal the questions related to the geography and environment and ecology. Look at the question number 5. Discuss the current status. Discuss the current status. Discuss the current status and future prospects of solar energy development इन उत्तर प्रदेश. हिंदी में बोलें तो उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करें. क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में करंट स्टेटस बताइए कि अभी सोलर एनर्जी का करंट स्टेटस क्या है एंड व्हाट इज द प्लान ऑफ फ्यूचर सोलर एनर्जी डेवलपमेंट इन यूपी. ओके, so firstly we have to break down the question and find out the need of the question. What is the requirement, what is the need, or you can say that demand and the requirement of the question. The requirement of the question is, the first, tell us the examiner the solar capacity status, current status of solar capacity, and also tell us the future प्लान्स इन सोलर कैपेसिटी. तो क्या क्या बताना है? दो चीजें बतानी है. एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि डिस्कस द करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोलर एनर्जी इन द डेवलपमेंट सोलर एनर्जी डेवलपमेंट इन द उत्तर प्रदेश. तो नाउ यू कैन स्टार्ट विथ लाइक यूपी has made a progressive start in the field of solar energy. UP has made the progressive start in the field of solar energy, which reduce its burden on the traditional dependency on the coal based energy supply. So this is your intro. क्या कि you Uttar Pradesh has made the progressive start in the field of solar energy, which reduce its burden on the traditional dependency on the coal based energy supply. Now in the next part of the question you have to just mention, like in the main body, this is your intro, you can start differently. In the main body you have to tell us the current status. What is the current status of solar capacity in UP? So according to the 2024's data, UP's current solar energy installation is 2125 gigawatt, sorry, megawatt, not gigawatt, megawatt solar capacity, up from
just 79 megawatt from 2017. नेक्स्ट क्या हो सकता है? इन जुलाई 2024 दिस ग्रीव इज अबाउट 3105 मेगावाट, ये भी आप बता सकते हैं. बट स्टिल फेल्ट शॉर्ट टू अचीव द 2022 gigawatt, not byte, gigawatt by 2026 to 2027. ये एक आपने करंट स्टेटस में बता दिया कि भाई अभी यूपी में क्या है. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा ऑफ जो जनवरी 2024, 2125 मेगावाट, up from just 79 megawatt from 2017, and in July 2024 it reaches 3105 megawatt, but it is still very less to achieve or hit the target of 22 gigawatt by 2026 to 2027. नेक्स्ट क्या बता सकते हैं? लार्ज स्केल, सेकंड large scale solar plants, large scale solar plants. Okay, now UP is planning 70 solar plants installation. यूपी क्या प्लान कर रहा है कि 17 सोलर प्लांट्स, जिसका ऑब्जेक्टिव है 1000 मेगा watt energy का इंस्टॉलेशन. 1000 टू, या यू कैन से दैट 1100 मेगावाट इंस्टॉलेशन का टारगेट है, विच इज कमीशनड इन 2024. ये 2024 में क्या हुआ है? कमीशन हुआ है. नेक्स्ट क्या बता सकते हैं? मेजर यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स अंडर इंक्लूडिंग 800 मेगावाट. 800 मेगावाट का जो कहाँ लग रहा है? तो ये आपका चित्रकूट में लग रहा है. फिर वही आप देखोगे 600 मेगावाट ललितपुर में है. 600 मेगावाट ललितपुर और 800 चित्रकूट में. ठीक. नेक्स्ट इसी के साथ हमने देखा है कि 600 मेगावाट झांसी में भी लग रहा है. तो यू कैन ऑल्सो add here 600 megawatt in झांसी. तो ये आपका एक डेटा हो गया. नेक्स्ट आप इसी में क्या कर सकते हैं? रूफ टॉप प्लान. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन. रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन का भी डेटा दे सकते हैं. तो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में क्या है कि आवर टारगेट इज टू इंस्टॉल 8 लाख, मोर देन 8 लाख जो है हमें, हमारा टारगेट है 8 लाख रूफटॉप बाई 2027. देखो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है. तो अभी तक हमने क्या किया है? अकॉर्डिंग टू 2024 डेटा, ओवर 1 लाख रूफटॉप इंस्टॉलेशन हो गया है, विच इज स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू इट्स टारगेट. ठीक. नेक्स्ट क्या हो सकता है? हम अब इसमें क्या है, इसी के साथ हम पीएम कुसुम स्कीम के बारे में बता सकते हैं, जो सब्सिडाइज कर रहा है इन द एग्रीकल्चर में सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पुश आप बता सकते हैं, या पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पुश के साथ नहीं, पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पुश के अलावा भी आप कुछ थोड़ा बहुत अभी डेटा इसमें और ऐड कर सकते हैं. जैसे आप एक डेटा ये बता सकते हैं कि 2025 में जो इन्वेस्टमेंट एक्सपो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने कराया था लखनऊ में, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हुई है 6 लाख करोड़ रुपए की.
तो 6 लाख करोड़ रुपए की बात हुई है। अब उसमें से जबकि ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है कि 1 लाख करोड़ जो है आपको 125 क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बात कही गई है। तो ये भी बता सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं, लाइक देयर आर ह्यूज गैप ऑफ टारगेट एंड द अचीवमेंट्स। जो टारगेट हमने सेट किया है और जो हमारा अचीवमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के, तो देयर इज अ बिग गैप बिटवीन देम। सेकंड क्या है, लार्ज स्केल एरिया जो हैं रिमेन्स जोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड, large scale solar remains geographically concentrated into the बुंदेलखंड and बुंदेलखंड regions। ठीक, बाकी जगह पे उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जैसे अगर हम ईस्टर्न यूपी की बात करें तो ईस्टर्न यूपी में सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम जो है वो काफी धीमा है। अब कह रहा है ये तो कुछ आपने डेटा दे दिए, अब कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में बताना है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को हमें बताने के लिए सबसे पहले एक मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है पहले से। जैसे हमारा कैपेसिटी टारगेट है 22 गीगावाट बाई 2026 टू 27। तो आप ये बता सकते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं। 2 गीगावाट सोलर इन बुंदेलखंड रीजन, 2 गीगावाट सोलर इन बुंदेलखंड रीजन, जिसमें झांसी, ललितपुर, चित्रकूट है। यहीं पर फ्लोटिंग सोलर इन रिजर्वायर बनाने की बात कही गई है। ठीक, यहीं पर जो है नेक्स्ट आप देखोगे तो इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड सोलर ट्यूबवेल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। हाइब्रिड सोलर ट्यूबवेल्स, कैनाल सिस्टम एंड कुसुम C2 स्कीम्स टू रेज फार्मर इनकम एंड एनर्जी यूज। ठीक, नेक्स्ट हम रूफटॉप स्केलिंग कर रहे हैं पीएम सूर्यघर योजना के थ्रू, एम्स टू सब्सिडाइज द फ्री रूफटॉप्स विद द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, उसके साथ साथ हम यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन एंड स्टोरेज के लिए भी एक हमारा फ्यूचर प्रोग्राम है, जिसमें हम पॉलिसी सपोर्ट्स 4 आवर्स स्टोरेज बैटरी सिस्टम दिला रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ हमें कुछ और नीड्स हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की, जहां पर हम चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे लोग इन्वेस्टमेंट करें। ठीक, अब अगर इसका मान लो हमें ये लिखना हो कि इसका कंक्लूजन लिखना हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑफ all the challenges, we can't ignore UP's progress in the field of solar energy क्या बोल रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस वी कैन नॉट इग्नोर द यूपीज प्रोग्रेस इन द सोलर एनर्जी, बट देयर आर सर्टेन policy loophole, certain policy loophole which is main hurdle to hit its target on टाइम। ठीक, तो हमने ये बता दिया इसमें कि भाई एक पॉलिसी जो है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस वी कैन नॉट इग्नोर यूपीज प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, बट देयर आर सर्टेन पॉलिसी लूपहोल which is the main hurdle to hit its target on time। तो ये एक तरह का, देखो ये क्वेश्चन कैसा है, डेटा बेस्ड है, बहुत सारा डेटा इसमें आपको याद होना चाहिए। मैंने तो बहुत सारे डेटे उठाकर ले आया हूँ, कुछ मैंने लिखा था, कुछ मैंने यहाँ पर लिख करके रखा था, तो मुझे याद है। पर आप एग्जाम के दौरान ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको डेटा याद होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान से, थैंक यू।
So now we are in the continuation, we are going to deal the next question. Next question है कि critically analyze the socio-economic implication of new forest policy in tribal and forest dependent areas. क्या पूछ रहा है भाई इसमें, जरा फिर से देखिएगा, हिंदी में बोल रहा है क्वेश्चन कि जनजाति और वन आश्रित क्षेत्रों में नई वन नीति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए वर्ड है समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। वेन एवर दीज टाइप ऑफ टेल वर्ड्स आर in the question, you have to remember one thing, कि you cannot only praise the policies of government, you can also in these questions you have a scope to criticize in a very scientific approach, in a very scientific manner में आपको criticize भी करना है। जनजाति और वन आश्रित क्षेत्रों में नई वन नीति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चलिए भाई हम लोग देखते हैं कि क्या बेस्ट वे हो सकता है इस क्वेश्चन को लेकर के। तो देखो इसका एक चीज क्या है, पहले हम नेचर समझते हैं, इस क्वेश्चन का नेचर और डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो सबसे पहले इंट्रो के पहले हम यहाँ पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझते हैं। डिमांड क्या है, ये पूछ रहा है कि जो भी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, और चूंकि ये यूपी के कॉन्टेक्स्ट में है, क्वेश्चन पेपर 6 में है, इसका मतलब है 2017 का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है विच हैज बीन रिवाइज्ड इन 2023 एज वेल। यूपी के फॉरेस्ट पॉलिसी से सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस पूछ रहा है, इफेक्ट पूछ रहा है न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी का। डिमांड क्या है भाई कि बताओ what is the socio-economic implication of new forest policy in tribal and forest dependent community। मतलब forest dependent community और जो ट्राइबल्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन पर क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस पड़ रहा है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम कह सकते हैं द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट as well as UP have its own new forest policy which was passed in 2017 have multi-dimensional impact on the community which will inhabited the forest एरियाज। क्या पता चला भाई कि जो भी कम्युनिटी रह रही हैं उन पर जो है मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट इन ऑफ द कम्युनिटी विच विल इनहेबिट द फॉरेस्ट एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। तो अब जो मल्टी डायमेंशनल सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो कैसे हो सकता है, जरा ये देखो भाई। तो इट कैन बी positive at some extent,
extent and it have certain negative aspect as well as। तो हमें क्या पता चला कि जो ये न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है और कुछ निगेटिव भी है। तो और जरा देखें, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट। वन बाय वन मैं बात करूंगा। जैसे आप यूपी के बारे में बात करें कि यूपी का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, इट विल क्रिएट मोर livelihood opportunities, it will creates more livelihood opportunities through afforestation, afforestation for the local community with the help of इको टूरिज्म। तो देखो भाई, पहला क्या हुआ, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू द एफॉरेस्टेशन एंड इको टूरिज्म, प्लांटेशन ड्राइव्स एंड इको रेस्टोरेशन एफर्ट्स फ्रॉम द from you can say that create the seasonal employment for the tribal laborers। और क्या करना है, प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म विच इज बेस्ड ऑन which is forest based for the local peoples। भाई यहीं पर काम करेंगे, इन्हीं के लिए लाइवली अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है विथ कंजर्विंग द ट्राइबल इंटरेस्ट एज वेल, उनके इंटरेस्ट को भी कंजर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है भाई, तो ये कह रहा है कि पॉलिसी एडवोकेट करती है कि जो भी फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए, देयर इज अ मैंडेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल ट्राइबल पीपल्स और द पीपल्स हु आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, उनके साथ इंकरेज द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर मान लो कुछ भी फॉरेस्ट में चेंजेस लाने हैं या फॉरेस्ट के डायनेमिक्स को चेंज करना है, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो, ताकि लोकल पीपल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बना रहे, उनका पार्टिसिपेशन बना रहे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट एंड learning programs, स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोग्राम्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें क्या होगा भाई, तो ट्रेनिंग इन द यू कैन से दैट नर्सरी डेवलपमेंट, नॉन टिम्बर एक्टिविटीज, और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हाउ वी कैन बैलेंस द इकोलॉजिकल, how we can balance the ecology without harming in some extent। भाई बिना हार्म किए हुए कैसे हम इकोलॉजी को बैलेंस कर सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो अर्न रिसोर्सेज एंड वी कैन ऑल्सो अर्न मनी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट। उससे रिसोर्स भी यूज कर लें, उससे इनकम भी जनरेट कर लें, पैसा भी कमा लें, और उससे हार्म भी ना हो। इसके लिए जैसे एक्सपोजर ऑफ ग्रीन जॉब्स, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, ठीक, और क्या होता है, जैसे टूरिस्ट गाइडर्स होते हैं वहां पे, और क्या हो सकता है, जैसे जैसे कोई एक उसी में आप सोच लो कि ऐसे ग्रीन जॉब्स में ऐसे लोग हों जो एक तरीके से इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं वहां पे, इस तरह का। थर्ड क्या हो सकता है, फोर्थ क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो है उन्हें इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी देती है, और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी में क्या कह रहे हैं जरा देखो, इसमें इंप्रूव कर रहे हैं हम, और टू मेक श्योर कि वी कैन नॉट
इंटरप्ट एंड इंटरफेरेंस इन द कोर जोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोर जोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोकल पीपल्स हैं, लोकल पीपल्स विथ जो कोर जोन है, मतलब जिसमें जानवर जो एनिमल्स हैं उनका जो कोर जोन है उसको हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। तो भाई सोशियो इकोनॉमिक में क्या हुआ, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी था थ्रू दी एफॉरेस्टेशन एंड इको टूरिज्म, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट था जिसमें पीपल सेंट्रिक पार्टिसिपेशन था, लोकल पीपल सेंट्रिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग है। नेक्स्ट बोला कि स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोग्राम है प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके कैपेसिटी को भी बिल्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। और क्या है, देयर इज अ देयर इज अ there is a participation of there is a participation of e-technology, e-technology जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोवाइडिंग द लोकल बेस, लोकल लोगों को भी प्रोवाइड किया जा रहा है बेस। उसके साथ साथ जो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, जानवर के साथ बात करने का तरीका, लोकल आदमी का अपना जो ट्रेडिशन है उसको कंजर्व करने के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। अब कह रहा है देयर आर सो मेनी निगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल, बहुत सारे निगेटिव चैलेंजेस भी हैं। व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स, व्हाट आर द निगेटिव एस्पेक्ट्स? तो फर्स्ट क्या है, इट गिव द फ्रीडम फॉर द private players to invest in forest। अब प्राइवेट प्लेयर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, दे हैव द मोटिव ऑफ कॉमर्शलाइजेशन एंड दे हैव ओनली द मोटिव ऑफ इनकम जनरेशन, खूब सारा पैसा कमाओ डिस्पाइट ऑफ द इकोलॉजी हैज बीन हार्म्ड। ठीक, तो वो क्या सोचेंगे भाई, कॉमर्शलाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इन्वेस्ट करने का मौका दे दिया गया है। इरोजन ऑफ, और यू कैन से दैट देयर इज अ नॉट प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग ऑन द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ट्रेडिशनल राइट पर जो है, ट्रेडिशनल राइट्स, this policy cannot protect the traditional right of the scheduled tribes and forest dependent peoples। जैसे ट्रेडिशनल राइट्स क्या है भाई, जैसे ट्रेडिशनल राइट्स फॉरेस्ट एक्ट 2006 में दिए गए थे टू रिकॉग्नाइज द लैंड एंड रेस्क्यू द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, पर इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। सम टाइम दिस पॉलिसी इज डिनाइंग द क्लेम ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। अगर गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकता है, तो वो यहाँ से पीपल्स को माइग्रेट करा सकते हैं, डिस्प्लेस करा सकते हैं। तो जो लॉस ऑफ ऑटोनॉमी हुआ, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है जिसने उसको अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना सब कुछ समझा था, उस ऑटोनॉमी को, उस पावर को कम कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन कर दिया गया है, पीपीपी मॉडल बना दिया गया है, पब्लिक प्राइवेट, ताकि इको टूरिज्म हो जाए। वहां पे बहुत सारे कॉर्टेज सिस्टम को डेवलप कर दिया गया है, मतलब उसको फैसिनेटिंग बना दिया गया है। तो इफ द प्राइवेट प्लेयर्स आर कम, जैसे ही प्राइवेट प्लेयर आएंगे उससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन कर देंगे। कॉमर्शलाइजेशन से होगा क्या, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वहां का जो जेन्युइन इकोलॉजी है वो हार्म होगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, इनइक्विटेबल बेनिफिट ट्रांसफरिंग, इनइक्विटेबल बेनिफिट ट्रांसफरिंग, इनइक्विटेबल बेनिफिट ट्रांसफरिंग मतलब जो बेनिफिट का ट्रांसफर है, लोकल पीपल को जितना एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, जितना लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी का स्कोप था, जितना उनको होप था, उतना मिला नहीं। एंड द अमाउंट विच हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम दैट, एक तरीके से दैट फॉरेस्ट और द नेशनल पार्क, इट कैन नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स देम। ठीक,
जैसे अब कुछ हम ये भी समझ जाते हैं कि भाई ये तो हमने क्रिटिकली एनालाइज कर लिया, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ रिकमेंडेशन कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं भाई, क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को, वी कैन गिव सम सजेशन टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देते हैं, गवर्नमेंट को क्या सजेशन दे सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 which secures the rights, traditional right of the forest dependent community and scheduled tribes। तो क्या कर सकते हैं, strengthen the forest rights of the forest dependent community। ठीक, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी कर सकते हैं। इंश्योर द लोकल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड दे हैव द राइट टू क्लेम, ये कर सकते हैं। इंक्लूसिव गवर्नेंस कर सकते हैं, इंक्लूसिव गवर्नेंस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस, इंक्लूसिव का मतलब होता है ऑल, तो गवर्नेंस का मतलब है कि भाई इंस्टीट्यूशनल ग्राम सभा बना दो, उसके साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग करो, लोकल पीपल को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करो, बिकॉज जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी होता है दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट लैंड। फिर और क्या कर सकते हैं, देयर इज अ regulating authority and watching authority and monitoring authority for the PPP model, public private partnership, and there is a control, there is a control over the commercialization of the forest, balance conservation and livelihood, there is a balance। फोर्थ क्या हो सकता है, there is a balance, there is a balance livelihood and कंजर्वेशन, ये भी होना चाहिए। ठीक, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हमें ये करना है कि फैसिलिटेट करना है लोगों को, विमेन के रिप्रेजेंटेशन को, दलित के रिप्रेजेंटेशन को और ट्राइबल लीडर्स को जो वहां पर इमोशनली कनेक्टेड हैं, ताकि हम जानते हैं कि नेटिव पीपल्स जो होते हैं दे आर मोर इमोशनली कनेक्टेड टू एज कंपेयर टू दोज पीपल्स विच आर फ्रॉम द आउटसाइडर, बिकॉज आउटसाइडर को क्या होता है, उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ही दिखता है, वो रिसोर्स की तरह दिखता है। ठीक, अब इसके साथ साथ क्या लिखना है कि वाइल, अभी कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, वाइल न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ यूपी हैज exclusiveness, but there are certain challenges as well, which can review with time and focusing more on rights of
forest dependent communities employment and generation of eco tourism despite of the environmental conservation. ठीक, क्या बता दिया कि while the new forest policy of UP has exclusiveness, but there are certain challenges as well as which can review with time and focusing more on the right of forest dependent communities employment and generation of employment generation इकोटूरिज्म डिस्पाइट ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. एक तरीके से हमने ये कर लिया कि भाई एक तरीके से मिला जुला हम लोगों ने आंसर इसका दे दिया. ठीक, ये इसका अप्रोच है. एक दो बार आप देखें इस वीडियो को और एनालाइज करें. थैंक यू. फिर द क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री. डिफरेंशिएट between agroforestry and social forestry and explain their relevancy in context of यूपी. क्या कह रहा है? एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री में अंतर कीजिए और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए. अब भाई ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, कैसे आप इसे एड्रेस कर सकते हैं? क्वेश्चन का डिमांड पहले फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द नीड एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? डिमांड क्या है क्वेश्चन की? फर्स्टली क्या कह रहे हैं? डिफरेंशिएट करो भाई. डिफरेंशिएट between agroforestry and social forestry. फिर क्या कह रहे हैं? बताओ कि यूपी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन देयर रिलेवेंसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपी. यूपी के कॉन्टेक्स्ट में इनकी रिलेवेंसी क्या है? तो मुझे इसका इंट्रो कैसे लिखना है भाई? आप ऐसे लिख सकते हो इसका इंट्रो कि बोथ एग्रोफॉरेस्ट्री एंड social forestry both agroforestry and social forestry are sustainable approach for securing and enhancing not only the income as well as protecting environment. तो क्या कह रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री आर सस्टेनेबल अप्रोच फॉर सिक्योरिंग एंड इनहेंसिंग नॉट ओनली द इनकम एज वेल एज प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. आप ये भी कह सकते हो कि एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री आर बोथ सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस दैट इंटीग्रेट्स ट्री कल्टिवेशन विथ ह्यूमन नीड्स एज बट दे आर डिफर इन पर्पज अप्रोच एंड बेनिफिशरीज. ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे आर डिफर इन पर्पज अप्रोच एंड बेनिफिशरीज. तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट हियर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट what is agroforestry, what is agroforestry, and what is social forestry. We all are know that agroforestry, it means
with agriculture, if there is a cropping of or the plantation of trees with agriculture in the agricultural field, along with the crops there is a plantation of trees, it is called agroforestry. And social forestry are those plantation of trees outside traditional forest, and it is commonly planted in the barren area or mostly on the government area or the property of community which have equal right for the all the peoples which are living near and there. Okay, now in the agroforestry it showing the individuality. It's showing the individualness, and the social forestry shows the community approach, community based approach. It is more income based. It is more income based, and social forestry is based on welfare of the community, welfare of the community. और क्या बता सकते हैं कि भाई it is only in the particular's land or the private person's land and social forestry on the community land. इसमें क्या होता है, it is only benefits, it provides benefit for the individual, it provides benefit for the community. और क्या कर सकते हैं, what is the economic motivation? The economic motivation to generate more income with crop, and here there is a no economic motive, only there is a motive of welfare and only the motive of to fight and prevent of the rural heat ना, रूलर हीट से प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड द बैलेंस टेम्परेचर इन द रूरल एरिया. तो ये कुछ बेनिफिट्स, ये कुछ डिफरेंशिएशंस हैं बोथ में. अब कह रहा है हाउ इट इज रिलेवेंट इन द स्टेट लाइक यूपी. तो रिलेवेंसी क्या है भाई, यूपी इज, ऐसे लिख सकते हैं, यूपी इज अ स्टेट, यूपी हैव agrarian economy. UP have agrarian economy where it is a tool to enhance the income of farmers, which can only happen when we are cultivating, or we are cultivating, you can say that, the traditional crops as well as we are planting trees for the extra income. ठीक, तो ये कर सकते हैं. तो क्या होगा भाई, हमें पता चला कि यूपी में एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और उसके लिए हमें इस तरह का काम करना चाहिए. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जैसे हम, सबसे बड़ी बात है कि देयर इज अ कॉमर्शियल सक्सेस, कॉमर्शियल सक्सेस रेट इज वेरी हाई. सक्सेस रेट, कॉमर्शियल सक्सेस रेट, भाई यहाँ पे फ्रूट्स लगा दिए, बहुत सारे ट्रीज लगा दिए जो फर्नीचर गुड्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो कॉमर्शियल सक्सेस है. नेक्स्ट, अब कॉमर्शियल सक्सेस इसका मतलब इनकम जनरेट होगा, और द टारगेट ऑफ फार्मर्स इनकम डबल करने का जो टारगेट है वो भी हम अचीव कर लेंगे. एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड्स द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट विल इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. और क्या आप देख सकते हैं इसमें, सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ ये जो है प्रेशर ऑन फॉरेस्ट लेस करता है, रिड्यूस द प्रेशर
रिड्यूस द प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर से प्रेशर को कम करता है। नेक्स्ट और क्या कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स द इंडिविजुअल फॉडर, ठीक। इसके साथ साथ क्या होता है, ये एक तरीके से नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड कराता है, ठीक। तो इस तरह की भी चीजें हैं, आप लिख सकते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स दी सॉइल डिग्रेडेशन, ये भी बता सकते हैं, इट ऑल्सो प्रिवेंट दी सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक, सॉइल डिग्रेडेशन को। तो एक तरीके से ये हो गया। अब कह रहे हैं कि भाई सोशल फॉरेस्ट्री से क्या है, तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या करता है, देयर इज अ मेन फोकस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, द मेन फोकस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज ऑन द कम्युनिटी, मेन फोकस में उसके कौन है, कम्युनिटी। तो पहला तो क्या हो सकता है भाई, देयर इज अ it provides a common fodder and fuel for the scheduled tribes and the weaker sections of the village, weaker section of village को provide कराता है। it also, अब मान लो ये तो नहीं कह सकते हैं कि इससे कुछ लोग गांव में कुछ सेल कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप रूरल एरिया का सिनेरियो जानते ही हैं इंडिया में कैसा है। पर ये हम कह सकते हैं कि इट इज अ positive and the right approach for the afforestation, afforestation का एक अच्छा अप्रोच है। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व कम्युनिटी, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इससे बढ़ता है। पर इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो सकता है, ओवरऑल इंपैक्ट में, तो ओवरऑल अगर इंपैक्ट में हम जाएं, तो अगर एक ऐसा हम चार्ट बना लें, तो ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, एंड इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है प्लस इनकम जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, इट increase the biodiversity, बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इट प्रोवाइड्स दी एम्प्लॉयमेंट, बता ही चुका हूं। इट ऑल्सो मेंटेन दी heat balance, it is a natural source of humus प्रोवाइड करेगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे तो। और क्या करेगा, इट इज अ क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि इन उत्तर प्रदेश, अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि इन उत्तर प्रदेश एग्रो फॉरेस्ट्री इज टूल फॉर फार्म लेवल प्रोडक्टिविटी while social forestry address the community welfare programs, ठीक। and because of this both are the hands of one man, so that the overall development of UP is possible when we are carrying agroforestry with social forestry, ठीक। तो ये एक तरीके का मिला जुला अप्रोच होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट द मेजर्स टू एनहांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम इन यूपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के उपाय सुझाइए।
suggest measures to enhance agricultural productivity and farms income in यूपी। भाई बताओ कि यूपी में कैसे एग्रीकल्चरल, देखो इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि हमें बताना है और सजेस्ट करना है मेजर्स हाउ टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एज वेल एज फार्म इनकम। कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और फार्म इनकम को प्रमोट कर सकते हैं इन यूपी। तो क्या कह सकते हो भाई, इसका इंट्रो कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि इनहैंसिंग द agricultural productivity and farmers income is possible when we adopted multi-dimensional approach to address the areas of various regions through the help of technology to maintain or address the energy supply or the energy crisis, availability and access of market, and also providing the security for crop failures। ठीक, तो क्या बताया कि enhancing the agricultural productivity and farms income is possible when we adopted the multi-dimensional approach to address the areas of various regions through the help of technology, infrastructure, market access, sustainability and providing the security for crop failures। अब कह रहा है क्वेश्चन में, ये तो इंट्रो हो गया भाई, आप कई तरीके से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें और क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि सजेस्ट द की मेजर्स, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक फार्मर्स का इनकम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। तो पहला क्या है कि हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम नहीं करते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करते हैं ना। डाइवर्ट मतलब क्या है, हम मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं। मोनोक्रॉपिंग, देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ मोनोक्रॉपिंग। हमको क्या करना पड़ेगा, मोनोक्रॉपिंग का अप्रोच छोड़ना पड़ेगा। तो वी हैव टू शिफ्ट आर मोनोक्रॉपिंग और द ट्रेडिशनली क्रॉपिंग पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, क्रॉपिंग पैटर्न को छोड़ना पड़ेगा। एंड वी हैव टू मूव ऑन द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द production of wheat and rice, we also think about how we can inculcate the more crop diversification in our agricultural field, like horticulture, like sericulture, like floriculture। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स को लगा कर फ्लोरिकल्चर करके हम अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक, और क्या करना है, वी हैव ऑल्सो address the region
स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? वी हैव टू also use crop diversification according to the climatic zones। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखना है, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड द टेम्परेचर ये भी देखना है, और सीजनैलिटी कि सीजन वाइज सीजन किस तरह की मोबिलिटी है। दूसरी चीज क्या है? वी हैव टू ऑल्सो यूज मॉडर्न फार्म टेक्निक्स। The third one is modern. We have to use modern farm techniques. What is the means of modern farm techniques? जैसे to promote the precision agriculture. What is the means of precision agriculture? To promote the precision एग्रीकल्चर। टू प्रमोट द प्रीसीजन एग्रीकल्चर। प्रीसीजन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है भाई? जिसमें हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जीआईएस का यूज करते हैं, ड्रोन्स का यूज करते हैं। तो हमें अपने फार्मिंग टेक्नोलॉजी और फार्मिंग टेक्निक्स बदलनी पड़ेंगी, हमें अपडेट होना पड़ेगा डिजिटली। जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड, we have to also address the with the help of technology and with the help of scientific analysis कि कौन सी टाइप का, कौन सी वैरायटी का सीड्स यूज करें, ठीक, क्या क्या करें। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशनल फैसिलिटी को प्रमोट करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ताकि रूट में जाकर के जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है, प्राइमरली तो बड़ा कॉस्टली होता है, पर उसके अगर एक बार लग जाए बड़े से लैंडफॉर्म में तो ये वाटर तो कंजर्व करता ही करता है, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी को भी कंजर्व करता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस द क्लाइमेट स्मार्ट सीड्स। introduce the climate smart seeds। जैसे क्लाइमेट स्मार्ट सीड्स एंड प्रैक्टिसेस क्या है? जैसे ड्रॉट रेजिलिएंट सीड्स का यूज ना, ड्रॉट रेजिलिएंट सीड का यूज करना है, देखना है। और क्या देखना है? क्लाइमेट एडॉप्टेबिलिटी भी देखना है, क्लाइमेट सुटेबिलिटी भी देखना है। वी ऑल्सो प्रैक्टिस मल्चिंग एज वेल टू प्रोटेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी एंड ह्यूमस। मल्चिंग प्रैक्टिस करना है। इंटरक्रॉपिंग, ठीक। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं भाई? स्ट्रेंथनिंग द इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, और देयर आर सो मेनी स्टेप्स टू रिफॉर्म द प्रेजेंट इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रेंथनिंग the irrigation facility or irrigation system। what does it means by the strengthening the irrigation system? जैसे जहां पर कैनाल एक्सेस नहीं है, बहुत सारे यूपी में, ईस्टर्न यूपी की जगहें हैं जहां पर कैनाल इरिगेशन डेवलप नहीं हुआ अच्छी तरीके से, जहां पर कोई भी अभी तक जो है इरिगेशनल सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जहां पर लैंड तो है पर लैंड पर वाटर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वहां तक हम करेंगे कि एक्सपेंड द मॉडर्नाइज कैनाल एंड ट्यूबवेल नेटवर्क्स जो गवर्नमेंट के हैं। और क्या करेंगे? कंप्लीट द पेंडिंग इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स, जो पेंडिंग इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी काम करेंगे। और क्या कर सकते हैं? सेटअप द एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स
in the local areas, set up the agro processing units in the local areas like मिनी स्टोरेज और मिनी कोल्ड स्टोरेज हो जाए, ठीक, ये भी कर सकते हैं, मिनी कोल्ड स्टोरेज ना, मिनी कोल्ड स्टोरेज हो जाए। तो यहां क्या क्या, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड एक्सेसिबिलिटी टू दी मार्केट, तो मार्केट तक इसकी एक्सेसिबिलिटी भी हो जाए, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड टू दी ई टेक्नोलॉजी, ई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, ई टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे ई मंडी से उसको जोड़ दो भाई, उसको जो है टाइमली जो है ई मंडी से जोड़ दें, वहां पर ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटी को अच्छा डेवलप कर दें, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो परमिशेबल गुड्स हैं उनके लिए कर दिया जाए, इस तरह की बात। और उसके साथ क्या हो सकता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट एंड crop insurance, because we all are know that the farmers are come from the marginalized sector, most of the farmers are come from marginalized sectors। अब इसका मतलब क्या है, there is a erratic nature of मानसून का erratic nature है, तो बहुत बार क्रॉप फेल्योरनेस हो जाता है, जिसकी वजह से किसान को सुसाइडल टेंडेंसी आती है और कई बार फार्मर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, जैसे आप पीएम गरीब कल्याण स्कीम है उसके थ्रू, और जो है क्रॉप फेल्योरनेस, क्रॉप इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, और अगर क्रॉप फेल्योर हो जा रहा है तो उस टाइम पे पैसा भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक ना। इंप्रूव मार्केट एंड एमएसपी आपको बता ही चुका हूं। एक्सटेंसिव सर्विसेज एंड फार्मर एजुकेशन, इस पर जरूर ध्यान देना है कि फार्म एजुकेशन, फार्मर बहुत कम एजुकेट है, फार्मर एडुकेशन देयर इज अ फोकस ऑन फार्मर एजुकेशन, बिकॉज ईच पासिंग डे नई वेराइटी ऑफ सीड्स आ रही हैं, अलग अलग वेराइटी के सीड्स आ रहे हैं, उनका प्लांटेशन, उनकी प्लॉगिंग, कितना प्लॉग किया जाए सॉइल को, इसके लिए एजुकेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप कैसे हो सकता है इसके लिए, और किस तरह की वेराइटी के क्रॉप्स का आप प्लांटेशन कर सकते हो, इसके लिए फार्म का एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्रमोट दी सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, प्रमोट दी सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी आपको प्रमोट करना पड़ेगा। और ऑल्सो प्रमोट दी अलाइड सेक्टर, जो इससे अलाइड सेक्टर्स हैं, तो नेक्स्ट हो सकता है प्रमोट दी अलाइड सेक्टर्स, प्रमोट दी अलाइड सेक्टर्स। ओके, अलाइड सेक्टर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे पोल्ट्री हो गया, डेयरी फार्मिंग होगा, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक, तो इस तरह की चीजों को प्रमोट करना। अब इसके साथ कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं भाई, इसका कंक्लूजन किस अप्रोच में लिखा जा सकता है, देखो यहाँ बहुत सारी बातें हम लोगों ने पॉइंट वाइज कर ली, और ये पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन का स्कोप आपके पास नहीं होगा ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर द वर्ड लिमिट एज वेल, हमको वर्ड लिमिट भी ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज द राइट कंक्लूजन फॉर दिस, कंक्लूजन इसका कैसे लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि द सस्टेनेबल improve productivity and income of UP's agricultural sector, there must be synergy between, or there must be the synergy between technology, infrastructure, policy support and the farmers empowerment, by localizing the technology, by supporting the crop insurance, by supporting the MSP, and by supporting the mass awareness camp about the seeds failures, how to prevent the insecticides in the crops, इस तरह की चीजें करके हम फार्मर्स का इनकम यूपी में बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ये ओवरऑल आपका अप्रोच रहा, और आप इसको 2-3 बार देखिए और इससे सीखिए। थैंक यू। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिस्कस द की फाइंडिंग्स ऑफ लास्ट सेंसस एंड देयर रिलेवेंस टू सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग इन यूपी। क्या कह रहा है, पिछली जनगणना के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा कीजिए और उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन को समझोगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेसिक डिमांड एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पहले तो हमको डेटा बताओ। क्या बताओ, कुछ डेटा बताओ जनगणना से रिलेटेड जो 2011 में हुआ था। ठीक, द लास्ट कंप्लीटेड सेंसस वाज 2011 एंड 2021 सेंसस हैज बीन डिलेड। तो हमारे पास जो बेस है, जो बेस है डेटा का, पॉपुलेशन डेटा का, जनगणना का, वो यही है 2011। उसी के साथ क्वेश्चन, उसी में क्वेश्चन कह रहा है कि पिछली जनगणना के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा कीजिए। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द लास्ट सेंसस एंड देयर रिलेवेंस, मतलब उनकी प्रासंगिकता बताओ सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। मतलब वो जो डेटा आएगा उससे क्या हम यूपी में सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूपी इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट में क्या बेटरमेंट के लिए हम कर सकते हैं। तो देखो भाई, पहले तो हम इसका इंट्रो कैसे लिख सकते थे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। ओके, द लास्ट complete census was held in 2011 and 2021's census has been delayed, has been delayed because of this we have to make all the socio-economic planning based on 2011 सेंसस। क्या करना है भाई, हमें सारा जो हमारा प्लानिंग है, लास्ट कंप्लीटेड सेंसस इन इंडिया वाज 2011, ऑल्दो द 2021 census has been delayed, the 2011 census still provides a critical analysis of socio-economic planning। उसी के बेस पर हमें socio-economic planning करनी है। किस पर, we have make all the socio-economic planning based on 2011 census। अब कह रहा है पहले तो कुछ की फाइंडिंग्स बताओ। तो आई हैव टू प्री मेंशन, क्या की फाइंडिंग है, पॉपुलेशन डेटा, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 19.98 crore, which is almost 16.5% of the India's population। इससे पता चला कि यूपी जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इन दी कंट्री। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डिकेडल ग्रोथ रेट इज हाई 20.2%, डिकेडल ग्रोथ रेट इज हाई देन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज क्या है, 17.7 डिकेडल ग्रोथ रेट है। उससे जो है नेशनल डिकेडल ग्रोथ रेट से यूपी का डिकेडल ग्रोथ रेट ज्यादा है पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्या है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी रही, 22.3% अर्बन पॉपुलेशन है। इसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है डिस्पाइट ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। रूरल पॉपुलेशन यूपी में ज्यादा है। नेक्स्ट क्या पता चल रहा है, यूथ डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एज 0 to 14 ईयर्स 35%। इससे पता चल रहा है कि यूपी हैव द लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन इमर्जिंग एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड।
तो ये जो है इससे हमें पता चल रहा है कि यूपी में जो है डेमोग्राफिक यूपी इज गोइंग थ्रू द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसीलिए देखो सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, सबसे ज्यादा जो एक तरीके से लेबर सप्लाई है उसमें यूपी आगे है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लिटरेसी रेट। ये कुछ की फाइंडिंग्स है ना। लिटरेसी रेट क्या है, ओवरऑल 67.7, मेल में 77.3%, फीमेल में 57.2%। अब ये क्या बता रहा है, ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो बता रहा है कि देयर इज अ जेंडर गैप। तो किस पर काम करना है, तो मोर अप्रोक्स 20% जो है ये डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल के लिटरेसी रेट में। ये बता रहा है जेंडर गैप इन यूपीज लिटरेसी रेट। तो हमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। अब कह रहे हैं सेक्स रेशियो, इसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स बनाएंगे। तो कह रहा है सेक्स रेशियो टोटल क्या है, 912 फीमेल है आउट ऑफ 1000 मेल पे, जो नेशनल एवरेज है 943, उससे भी कम है। ये क्या बता रहा है भाई, ये बता रहे हैं यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, इंडिकेट्स द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये बता रहा है कि लोग जो हैं सन चाइल्ड लड़के के पीछे के लड़का ही पैदा हो, उस तरह के डिस्क्रिमिनेशन और एक तरीके से नैरोनेस ऑफ माइंड को शो कर रहा है, ठीक। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, 0 to 6 years 902, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, ठीक। और ये भी बता रहा है कि इंडिकेट्स द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। अब कह रहा है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक रिलेवेंसी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग इन यूपी में रिलेवेंसी इन द सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, तो एक एक किया है। पहले तो हम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सारी समस्या, ऑल द प्रॉब्लम्स, द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स आर हाइडिंग इन एजुकेशन। जो सारी समस्या है वो अगर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कर दें तो खत्म हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमने एक की फाइंडिंग देखी कि यहाँ पर लो लिटरेसी रेट है, यूपी में लो लिटरेसी रेट है, ठीक। तो लो लिटरेसी रेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशली इन द किसमें है, रूरल वुमेन्स में है। और क्या है, इसके साथ साथ हमको यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यूथ देना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो उनको रोजगार भी तो मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए क्या क्या किया हमने, एक तो स्किल इंडिया प्रोग्राम है, और क्या कर सकते हैं, कुशल विकास योजना है। तो यहाँ पर स्किल इंडिया और कुशल विकास योजना, स्किल इंडिया एंड कुशल विकास योजना बना सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज अ विजिबल गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे हमने देखा कि अर्बन पॉपुलेशन यूपी में कम है, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कनेक्टिविटी टू द अर्बन एरियाज, अर्बन कंजंक्शन को भी बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, रूरल एरियाज में बेटर कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, ये सब करना पड़ेगा। लो अर्बनाइजेशन इंडिकेट्स क्या कर रहा है, डेवलप द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन। स्ट्रेंथनिंग द अर्बन प्लानिंग को भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब थर्ड क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कंजम्पशन भी फूड का बहुत ज़्यादा है। अगर हम विद द पासेज ऑफ टाइम, हम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ई मंडी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, और ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वी कैन नॉट सस्टेन, ठीक, वी आर कम इन द लिस्ट ऑफ बीमारू स्टेट, और बीमारू राज्य में आ सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन इसका मतलब क्यों करना है, क्योंकि हाई रूरल पॉपुलेशन है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ
कि हाई रूरल पॉपुलेशन का मतलब है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है, तो इसमें एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, जेंडर फोकस्ड इंटरवेंशन। जेंडर फोकस्ड इंटरवेंशन क्यों करना है, बिकॉज हमने देखा कि जो मेल और फीमेल का जो बॉर्न रेट है वो उनके में डिफरेंस है। अभी हमने देखा था कि जेंडर फोकस्ड इंटरवेंशन इसलिए करना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड में सन चाइल्ड चाहते हैं, ठीक ना, लड़के और बच्चे में लड़के पैदा करना चाहते हैं। ये टेंडेंसी है, ये जो सोसाइटी का नैरोनेस को दिखाता है। इसके साथ साथ हमें मैटरनल और हेल्थ केयर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन ट्राइबल, दलित और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में चलाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं जेंडर फोकस्ड इंटरवेंशन, क्योंकि जितना अच्छा जो फ्यूचरिस्टिक चाइल्ड्स होंगे उनका न्यूट्रिशन होगा, उतना ही हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का मतलब क्या है भाई, हमको ये देखना है कि जो यूपी है उसमें देयर इज अ इशू ऑफ मल न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड्स। मल न्यूट्रिशन का इशू है चाइल्ड्स में, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। इधर जेंडर फोकस्ड इंटरवेंशन में एक स्कीम आप लिख सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एंड एमएसपी ग्रोथ, इस पर भी हमको काम करना पड़ेगा। लार्ज इनफॉर्मल लेबर पॉपुलेशन है, क्यों, क्योंकि इंडिया जो यूपी है उसमें रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, प्रमोट्स द एमएसपी, रूरल स्टार्टअप पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक। रूरल स्टार्टअप कैसे करेंगे, जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स हैं उनका कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें और वहीं पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बना दें, वहीं पर जो है मार्केट से उसे कनेक्ट कर दें, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और फार्म इनकम बढ़ा दें, ठीक। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं। प्लानिंग मस्ट टारगेट लो एक्सेस टू द बैंक अकाउंट्स। भाई रूरल एरिया है, बैंक अकाउंट से लोग उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो स्कीम लाइक जनधन स्कीम के थ्रू हम जो है डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन ला सकते हैं। इसके लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, मनरेगा से कनेक्ट करेंगे ताकि डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ठीक। अब इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं भाई, यूपी का विजन 2027 जो है स्टेट बजट एलोकेशन और एसडीजी मॉनिटरिंग जो है वो रिलाई करेगी कि भाई कैसा सोशियो इकोनॉमिक जो है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं टू अचीव द टारगेट ऑफ नेशनल टारगेट ऑफ एसडीजी के नेशनल टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक। इसका कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल्दो 2011's data is too old but it is enough in light or enough focus on the socio-economic weaknesses in UP so that this data is useful or helping to focusing on the marginalized section and the weaker sectors of the UP। ऐसे कुछ करके आप इसका एक तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। चले, थैंक यू। लुक एट द क्वेश्चन, डिस्कस द क्लाइमेटिक जोन्स, डिस्कस द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड देयर रिलेवेंसी टू क्रॉप पैटर्न्स। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्रों की चर्चा कीजिए और फसल प्रतिरूप में उनकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ रहा है कि आप बताओ कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं और उनका क्या कनेक्शन है और क्या रिलेवेंसी है टू द क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, व्हाट आर द राइट अप्रोच टू डील दिस क्वेश्चन, क्या राइट अप्रोच है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके इंट्रो पर बात कर लेते हैं कि इसका इंट्रो क्या होगा। इंट्रो बिल्कुल सिंपल सा हो सकता है कि यूपी कैन बी
ऐसे कह सकते हैं कि यूपी इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न side or the northern plain, and it have vast geographical area, and that's why the climate of UP has very diverse, because it depends upon so many things like rainfall, temperature, moisture. इन सब चीजों पे इस तरह का कुछ आप बता सकते हैं कि यूपी हैव डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। कैसे कह सकते हैं कि यूपी इज lies on the northern region which have vast geographical region, so that UP have diverse climatic conditions. Diverse climatic condition. Despite of all these diversities, UP's climate can broadly categorize into three major zones. क्या कर सकते हैं कि यूपी कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 मेजर एग्रोक्लाइमेटिक जोन based on temperature, rainfall, and moisture, ठीक, और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखो भाई, इसमें और क्या हम लोग कर सकते हैं। अब यहीं पर हम एक यूपी का मैप बना दे रहे हैं, ठीक, जिससे आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग यूपी को लेकर के चलने वाले हैं। ये हो गया आपका एक यूपी का हमने मैप बना दिया। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली यूपी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेस्टर्न यूपी, तो अगर वेस्टर्न यूपी को देखा जाए तो हम इस ब्रॉडली मैं बोल रहा हूं, ये पूरा पार्ट वेस्टर्न यूपी हो गया, वेस्टर्न यूपी। दिस पार्ट विल बी द सेंट्रल यूपी, and this part will be ईस्टर्न यूपी। अगर एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से देखेंगे तो यूपी हैव 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, पर ये क्वेश्चन एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात नहीं कर रहा है, ये क्लाइमेटिक जोन की बात कर रहा है। तो ये हो गया वेस्टर्न यूपी। इसमें जैसे आप मेरठ को ले लीजिए, गाजियाबाद को ले लीजिए, सहारनपुर को ले लीजिए, तो यहाँ क्या है, सब ह्यूमिड क्लाइमेट है। सब ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब क्या है भाई, ड्राई टू मॉइस्ट है। क्या है, ड्राई टू मॉइस्ट, एंड रेनफॉल विल बी बिटवीन 175 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है, सेंट्रल यूपी। अब सेंट्रल यूपी में क्या है, सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड, सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड। और यहाँ क्या है भाई, ईस्टर्न। अब यहाँ पे रेनफॉल भी देख लीजिए, इसमें रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर, ठीक।
अब ईस्टर्न यूपी में भी दो पार्ट कर सकते हैं। वैसे ईस्टर्न यूपी का जो क्लाइमेट है सब एरिड, सेमी एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड, सेमी एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी रीजन्स आ जा रहे हैं। तो रेनफॉल इज बिटवीन 125 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो ये आपको एक बेसिक मैप दे दिया गया। अब इसमें क्या हो सकता है, वेस्टर्न यूपी में क्या बता सकते हैं, जैसे इसका रेनफॉल क्या है, मॉडरेट रेनफॉल है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लाइमेट क्या है, मोर ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कल्टीवेशन में देखें तो यहाँ पर राइस कल्टीवेट हो सकता है, वीट कल्टीवेट हो सकता है, और यहाँ पे शुगर केन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे कैश क्रॉप्स में भी देख सकते हैं कि जैसे शुगर केन हो गया। यहाँ पे इरिगेशन यहाँ पे कैसा है, ट्यूबवेल है और कैनाल इरिगेशन है। अब सेमी एरिड से लेकर सब ह्यूमिड में हो तो इसमें भी राइस है, इसमें भी वीट है, और इसमें भी शुगर केन हो सकता है, शुगर केन हो सकता है। यहां पर आओगे तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यूपी का, इसमें तो राइस है, वीट है एंड शुगर केन है, शुगर केन। ठीक, और जो नॉर्थ ये ईस्ट साउथ ईस्टर्न पार्ट है, इसमें रेनफॉल कम है। तो यहाँ पर वीट है, यहाँ पर भी राइस है, पर शुगर केन का अवेलेबिलिटी नहीं है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रिलेवेंसी ऑफ द क्लाइमेटिक जोन्स टू क्रॉप प्लानिंग इन यूपी। रिलेवेंसी क्या है, वाई, क्या कह रहे हैं, वाई दीज क्लाइमेटिक जोन्स मैटर्स। तो पहला क्या है, because of better crop selections, because of better crop selection। कि इसका मतलब क्या है कि which region is suitable, table for which type of crops। ठीक, तो हमको क्या पता चला कि हम ये समझ सकते हैं कि किस रीजन में किस तरह का क्रॉप हो सकता है। मतलब यहाँ रीजन स्पेसिफिक, रीजन सेंट्रिक क्रॉप्स के प्रमोशन की बात कर रहा है। सेकंड क्या हो सकता है कि इफिशिएंट, सेकंड वन इज efficient planning for irrigation, efficient planning for irrigation मतलब हम we can easily identify those areas which are not very much developed for the irrigation, जहां पर कैनाल सिस्टम, ट्यूबवेल सिस्टम का इरिगेशन नहीं हो पाया है। वो एरिया भी देख सकते हैं कि भाई वहां पर अगर इरिगेशनल फैसिलिटी को पहुंचा दिया जाए तो किस तरह के क्रॉप सुटेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ, थर्ड वन इज प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप। मतलब अगर मान लो सम एरियाज आर ड्रॉट प्रोन, तो वहां पे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉपिंग की जाए। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्लड प्रोन एरियाज का मैनेजमेंट कर सकते हैं, फ्लड प्रोन एरियाज का मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर जोनिंग कर सकते हैं, विच एरिया इज फेवरेबल फॉर द हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर जोनिंग, हॉर्टिकल्चर जोनिंग कर सकते हैं कि विच एरिया इज सुटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर, विच एरिया इज सुटेबल फॉर फ्लोरिकल्चर, विच एरिया इज सुटेबल फॉर सेरिकल्चर, विच एरिया इज सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग। और क्या कर सकते हैं, ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच एरिया हैव नॉट not any cereal crops developed, which area have promoted allied activities of agriculture। ये भी देख सकते हैं कि किस एरिया में अलाइड एक्टिविटीज को हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला कि यूपी हैव वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स आर द फंडामेंटल इन शेपिंग इट्स एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी। With the help of climatic zones, we are easily able to identify which zone is suitable for which type of crop diversification. It not only helps in the increasing the agricultural productivity, but it also gives us the some kind of information which formulate in the future what type of crop is suitable for which type of रीजन्स। तो ये एक तरह का इसका कंक्लूजन आप बना सकते हैं। थैंक यू।